Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, electric circuits. Introduction. Electricity is one of the most useful form of energy which makes our life comfortable. It is easily convertible to other forms of energy and can flow through cable which make it easy to transport. Electricity is used to power many devices which make our work easier. It provides both heat and light. Thus, it has become an inevitable part of our life. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इसकी वजह से देखिए हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो चुकी है. तो ईजिली कन्वर्टेबल है, आपके दूसरे फॉर्म्स में हो जाती है एंड देन केबल के थ्रू आपके फ्लो करती है, राइट. तो इलेक्ट्रिसिटी से आपके बहुत सारे डिवाइसेस आपके को पावर मिलती है जिससे कि वो काम करते हैं, हमारा काम करना ईजी हो जाता है. इसके अलावा हीट एंड लाइट भी हमें इलेक्ट्रिसिटी से ही मिलती है. Electric energy is obtained mainly from power stations. However, there are certain other sources of electricity. A torch is sometimes utilized to provide light when electricity supply fails. Where does the torch obtain electricity from? When we open the torch cover from the back or the front, we can see inside two cylindrical objects. What are these? These are called electric cells. These cells supply electrical energy to the bulb and the bulb glows. Thus, the electric cell is another source of electricity. अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो हम ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी वो आपकी मेनली होती है पावर स्टेशन से. हालांकि कुछ आपके दूसरे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, जैसे टॉर्च है, उसको हम कई बार यूज़ करते हैं जब कभी इलेक्ट्रिसिटी आपका सप्लाई फेल हो जाती है. तो टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये कवर होता है बैक और फ्रंट से. तो उसके अंदर आपके दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रिक सेल्स. तो इनका काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं बल्ब को और देन बल्ब ग्लो करता है. तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सेल है ये आपका क्या है, एक दूसरा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक सेल. There are some appliances that do not require high electric current and can work. Apart from torches, electric cells are also utilized in clocks, video games, calculators, cameras, alarm clocks, watches, etc. They are made in various shapes and sizes depending upon their applications. An electric cell is usually cylindrical in shape. It consists of two terminals, a positive terminal and a negative terminal. There is a metallic knob in the middle of one terminal. This is the positive end. The other side is negative end. How do you arrange cells in torch? Let us do an activity to know about the arrangement of cells in a torch. अच्छा देखिए, अब आपका क्या है कि कुछ अप्लाइंसेस ऐसे होते हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे हैं, कुछ आपके अप्लाइंसेस ऐसे होते हैं जिनको हाई इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत नहीं होती है. अब टॉर्च के अलावा देखिए आपकी जो इलेक्ट्रिक सेल्स को आपके क्लॉक्स में यूज़ किया जाता है, वीडियो गेम्स, कैलकुलेटर्स में, कैमराज में, अलार्म क्लॉक्स में यूज़ किया जाता है. ओके, तो ये डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के पाए जाते हैं. ये डिपेंड करता है कि उनका एप्लीकेशन क्या है. तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है यूजुअली आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है. इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल. अच्छा, तो ये जो सेल्स हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं टॉर्च में, तो एक एक्टिविटी के जरिए हम समझते हैं. Activity 13.1. Take a torch which has more than one cell. Open the cover of the torch and take out electric cells from it. Keep the cells in different arrangement rather than the standard arrangement, and what happens when you switch it on? The torch bulb does not glow. Again, open the torch and take out cells from it. Now arrange the cells as shown in figure and insert the cells in this arrangement. When the torch is switched on, it gives light. Now you have learned that the negative terminal of the first cell is joined to the positive terminal of the second cell and so on. This combination of cells is known as a battery. देखिए, आपने एक टॉर्च लेना है जिसमें आपके एक से ज़्यादा सेल्स होंगे. अपने कवर को ओपन करना है टॉर्च के, उसमें से इलेक्ट्रिक सेल्स निकालने हैं, फिर सेल्स को अपने डिफरेंट अरेंजमेंट में रखने हैं. डिफरेंट अरेंजमेंट मतलब जो आपका स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है उससे अलग. फिर आप उसको स्विच ऑन करेंगे, क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा. फिर आपने फिर से टॉर्च को खोलना है, उसमें से सेल्स निकालने हैं. अब जो अरेंज सेल्स को आपने इस तरह से रखना है जैसे कि आपको फिगर में दिया गया है, राइट. तो फिर आपका क्या होगा, जब आप उसको स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब आपका ग्लो करेगा. तो यानी कि जो आपका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है फर्स्ट सेल का, वो जॉइंट होता है आपके सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, राइट. और ये जो कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का, इसे कहा जाता है बैटरी. लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू सी व्हाट इज इनसाइड द सेल. Activity 13.2. Take a used cell and break it to open. What does it contain? There is a carbon black rod in the center with a brass cap on top. This is the positive end. The cover of the cell, which is a negative, is made of zinc. There are chemicals inside. One of the chemicals is ammonium chloride, which is white in color. The other is a black powder called magnesium dioxide. Electric cells produce a small amount of electricity from these chemicals. A cell stops producing electricity when these chemicals are used up.
completely. देखिए आपने एक यूज्ड सेल लेना है और उसको ब्रेक करना है. इसमें आप देखेंगे कि कार्बन रॉड होगी सेंटर में जिसका ब्रास कैप होगा टॉप में, तो ये आपका पॉजिटिव एंड होता है. जो कवर होगा सेल का जो कि नेगेटिव है वो आपका जिंक से बना होता है. और इसमें आपके केमिकल्स होते हैं. तो एक केमिकल जो है आपका अमोनियम क्लोराइड जो कि वाइट कलर में होता है. दूसरा जो आपका ब्लैक पाउडर है दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड. तो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं इन केमिकल्स से. तो सेल जब ये केमिकल्स आपके यूज अप हो जाते हैं तो फिर जो है सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है. बैटरी. A battery is a series of two or more cells. When you open a working torch, you will find that the positive end of one cell touches the negative end of the other cell. Some batteries are very big batteries. The car battery is normally made up of 6 cells. देखिए आपको बैटरी मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है. ओके, इसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं. तो कुछ बैटरीज आपकी बिग बैटरी होती है, जैसे कि हम कार की बात करें, कार बैटरी की, तो वो नॉर्मली आपकी बनी होती है 6 सेल्स के साथ. बटन सेल. Button cells are small, about the size of button. They are used in watches, video games, calculators, etc. The plates of these cells are made of from the compounds of nickel and cadmium. Button cells आपके बटन के साइज के होते हैं, इनको कैलकुलेटर्स, वीडियो गेम्स में यूज़ किया जाता है, और ये आपके बने हुए होते हैं निकल एंड कैडमियम से. Solar cell. A solar cell produces electricity when sunlight falls on it. The cell changes some of the sun's energy into electrical energy. It is ideal for places where there is plenty of sunlight but no electricity supply, such as in orbiting space satellites. अच्छा, सोलर सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस करता है जब सनलाइट उस पर पड़ती है, राइट. तो फिर जो सन की जो एनर्जी है, सेल क्या करता है, सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है. और ये उन जगहों के लिए बहुत ज़्यादा सही है जहाँ पे आपका सनलाइट बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है. इलेक्ट्रिक बल्ब. टेक एन इलेक्ट्रिक टॉर्च बल्ब, examine it carefully with a magnifying lens. You will find a very thin wire made into a coil inside the glass cover. This tiny wire is called filament. This filament is supported by 2 thick wires. देखिए एक इलेक्ट्रिक टॉर्च बल्ब को आप लेंगे, फिर इसको केयरफुली देखेंगे एग्जाम आप मैग्नीफाइंग लेंस से, तो आप देखेंगे कि बहुत ही थिन वायर जो है वो आपकी कॉइल में बनी है ग्लास कवर के अंदर, तो जैसे कहा जाता है फिलामेंट. और ये जो फिलामेंट है इसको सपोर्ट करती हैं 2 thick wires. One of the wires is connected to the tip of the base, while the other is connected to the metal casing around the base of the bulb. When the electric current passes through the filament of the bulb, through wire it glows white and produces light. अच्छा, अब इसका देखिए क्या होता है कि जो कनेक्टेड होता है इसके बेस के टिप से, जबकि दूसरा जो कनेक्टेड होता है वो आपके मेटल केसिंग से होता है आपका, जो कि आपके बल्ब के बेस में होता है. तो जब आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है फिलामेंट से वायर के थ्रू, तो ये ग्लो करता है, वाइट हो जाता है एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. लाइटिंग अप अ बल्ब विद एन इलेक्ट्रिक सेल. एक्टिविटी 13.3. You will need an electric cell, a bulb, 4 plastic coated copper wires. Now connect one copper wire to one end of the electric cell and the second copper wire to the other end of the electric cell. Use a sellotape to fix the end of wire on each terminal as shown. देखो आपको इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. अब आपने क्या करना है कि एक कॉपर वायर को आपने कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक सेल के एक एंड से और दूसरी कॉपर वायर को दूसरे एंड से. फिर आपने सेलो टेप का यूज़ करना है इन एंड्स को फिक्स करने के लिए, जैसे कि आपको इसमें दिया गया है. Now take a bulb and connect one end of the wire to the cylindrical metal base of the bulb. Fix another end of copper wire to the base of the bulb. Use tape to fix the wires to the bulb. अब आपने बल्ब लेनी है एंड कनेक्ट करना है एक एंड जो है वायर का सिलिंड्रिकल मेटल बेस से जो आपका बल्ब का है, और जो दूसरा एंड है कॉपर वायर का उसको बल्ब के बेस से. आप टेप का यूज़ करेंगे इन वायर्स को फिक्स करने के लिए बल्ब तक. नाउ कनेक्ट द बल्ब टू द सेल इन 6 different ways as shown in diagram. अब आपको जैसे डायग्राम में दिया गया है आपको क्या करना है, 6 different ways में इसको कनेक्ट करना है, आपको यहाँ पे दिया गया है, राइट. Now observe carefully this arrangement in which the bulb lights up. You will see that bulb glows in figure A and figure F. In these arrangement, a continuous path starts from positive terminal to negative terminal and hence the bulb glows. In figure B, C, the path of electricity is not continuous, so the current does not flow from positive to negative terminal. Hence, the bulb does not glow. In figure D and figure E, the end of the bulb wire of bulb is attached at same terminal. In such arrangement,
In figure D and figure E, the end of the both wire of bulb is attached at same terminal. In such arrangement, no current flows and hence the bulb does not glow. तो देखिए ये जो आपको अरेंजमेंट दिया गया है इनमें सिर्फ A एंड F में ही बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि इसमें आपका एक कंटिन्यूअस फ्लो आपका चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का. बाकी केस में आपका क्या होगा कि आपकी बल्ब ग्लो नहीं करेंगे. Electric circuit. The path from positive terminal of the cell to the bulb and back to the negative terminal of the cell is called an electric circuit. Electric circuit आपका एक path है आपका जो from positive terminal of the cell bulb के through and back to the negative terminal. The arrangement of a complete path shows an electric circuit. In such a path, the two terminals of the electric cell are fixed to two terminals of the bulb. This electric circuit is also known as closed circuit. If the electric circuit is broken at a point, such an electric circuit is called open electric circuit. अच्छा देखिए जो अरेंजमेंट है आपका जिसमें आपका कंप्लीट पार्ट शो हो रहा है ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है. इसमें आपके जो दो टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के वो फिक्स्ड होते हैं बल्ब के दो टर्मिनल्स के साथ. तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कहा जाता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. बट अगर इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ब्रेक हो रखा है या किसी भी पॉइंट पे ब्रोकन है तो ऐसे सर्किट को कहा जाता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. In closed electric circuit, the electric current flows from the positive terminal of the cell to the negative terminal through the filament of the bulb. If the filament is broken, no current flows through the bulb and the bulb does not glow. Such a bulb is called fused bulb. अब क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जो है फ्लो करता है आपका जो बल्ब का फिलामेंट है उसके थ्रू. अगर फिलामेंट आपका ब्रोकन है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा है ना और बल्ब जो आपका ग्लो नहीं करेगा. तो ऐसे बल्ब को कहा जाता है आपका फ्यूज्ड बल्ब. मेकिंग टॉर्च एट होम. एक्टिविटी 13.4. टेक अ टॉर्च बल्ब एंड इलेक्ट्रिक सेल अ फ्यू पीसेस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद बेयर एंड सेलोटेप. सो आपको इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. Fix pieces of two wire X and Y to the two connections in bulb socket. Fix the bare end of wire X to the positive terminal of the cell. Now connect a third piece of wire Z to the negative terminal of the cell. Now bring the end of the wire Y to the end of wire Z. Does the bulb stop glowing now? No. Thus we can make torch at home. Turn off switch by removing the end of the wire Y from the wire Z. अच्छा देखिए ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप क्या करेंगे जो आप फिक्स करेंगे पीसेस ऑफ टू वायर एक्स एंड वाई को आपके जो बल्ब सॉकेट है उसके दो कनेक्शन के साथ. फिर आपने जो बेयर एंड है वायर एक्स का उसको फिक्स करना है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. अब आपको थर्ड पीस ऑफ वायर जेड जो है उसको अपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने फिक्स करना है कनेक्ट करना है. फिर आपने क्या करना है जो वायर बी का एंड है वायर वाई का जो एंड है उसको आपने वायर जेड के एंड पे लेके आना. क्या बल्ब जो है इट विल स्टॉप ग्लोइंग नाउ? नहीं, क्योंकि तो आपका ग्लो करना बंद नहीं करेगा. इसका मतलब आपने टॉर्च आपने बना लिया. तो अब आप स्विच को ऑफ करेंगे. कैसे ऑफ करेंगे? आप जो वायर वाई है उसके एंड को रिमूव कर देंगे वायर जेड से. इलेक्ट्रिक स्विच. From the above activity, we have learned that we can switch on or off the bulb by touching or removing the ends of two wires. But completing and breaking the circuit in this manner is not easy. For this purpose, we use a convenient arrangement called an electric switch. देखिए इस एक्टिविटी में हमने देखा कि हमने क्या किया इलेक्ट्रिक आपकी जो हमने क्या किया कि स्विच ऑन और ऑफ किया बल्ब को. वो कैसे किया कि वायर्स को टच करके रिमूव करके. बट किसी भी सर्किट को कंप्लीट या ब्रेक करने ये इस मेथड से हम करेंगे तो बहुत इजी नहीं है. तो इसके लिए इलेक्ट्रिक स्विच की रिक्वायरमेंट होती है. मेकिंग अ सिंपल इलेक्ट्रिक स्विच. एक्टिविटी 13.5. टू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक स्विच यू विल नीड फॉलोइंग आइटम्स. अ स्मॉल शीट ऑफ वुडन और थर्मोकॉल, 2 drawing pins, a safety pin, a torch, bulb, an electric cell, few pieces of wire with bare ends. So आपको इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. Again, make an electric torch which you have made in previous activity. Take a drawing pin and wrap the bare end of wire Y around this pin. Now insert it into the loop at the one end of the safety pin and fix it on the sheet. Make sure that the safety pin can just turn around. अब आपने क्या करना है? आपने एक इलेक्ट्रिक टॉर्च बनाना है जैसे कि आपने प्रीवियस एक्टिविटी में बनाया था. फिर आपने ड्राइंग पिन लेनी है जो बेयर एंड है वायर वाई का उसको आपने रैप करना है इस पिन के राउंड. फिर आपने इसमें क्या करना है आपने इसको इंसर्ट करना है लूप में जो आपके सेफ्टी पिन के एक एंड पे होगा और उसको फिक्स कर देना शीट में. मेक श्योर करना है कि जो सेफ्टी पिन है वो टर्न हो सके. Now wrap the bare end of wire Z around second drawing pin. Fix it on the sheet in a way that the safety pin can easily touch it. अब आपने क्या करना है जो bare end है wire Z का उसको आपने wrap करना है second drawing pin के around.
फिर आपने इसको शीट पे फिक्स करना है इस तरह के जो सेफ्टी पिन है वो इजीली टच कर सकें. नाउ कनेक्ट द सेफ्टी पिन विद द हेड ऑफ ड्राइंग पिन as shown in figure. You will see that bulb lights up and this positive switch is set to be on. If you do not touch safety pin with the drawing pin, you will see that bulb does not glow. This is because the electric circuit is broken. Now it acts as off switched. अब आपने क्या करना है, सेफ्टी पिन को कनेक्ट करना है जिस ड्राइंग पिन के हेड से. फिर आप देखेंगे जो बल्ब है लाइट हो जाएगा. इसका मतलब जो पॉजिटिव स्विच जो है आपका ऑन है. अगर आप सेफ्टी पिन को टच नहीं करते हैं ड्राइंग पिन के साथ तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. दैट मीन्स आपका स्विच ऑफ है. Electric conductors and insulators. The materials that allow an electric current to pass through them are called conductors. Those materials which do not allow an electric current to pass through them are called insulators. देखिए वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में अलाउ करते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं और जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं. When the conductor is connected to a dry cell by means of copper wires, these charges will flow in one direction only. So copper wires are good conductors of electricity. Inside the conductor are tiny particles called charge. Thus the rate of flow of charge is called an electric current. तो देखिए जब कंडक्टर को कनेक्ट किया जाएगा ड्राई सेल से बाय मीन्स ऑफ कॉपर वायर्स तो ये चार्ज जो है आपके एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. तो आपके जो कॉपर वायर्स है वो गुड कंडक्टर्स हैं. कंडक्टर के इनसाइड आपके बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं चार्ज. तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. Let us perform an activity to show how some objects are conductors and some are insulators. Take a cell, put one wire at the positive terminal and one at the negative terminal. Apply a turn or two of insulating tape over the wires so that wires remains in their position. अच्छा आपने एक सेल लेना है, आपने एक वायर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे रखनी है और एक नेगेटिव टर्मिनल पे. फिर आपने एक टर्न अप्लाई करना है या दो इंसुलेटिंग टेप के ओवर द वायर्स जिस तरह से जो वायर हैं आपकी अपनी पोजीशन में रहें लाइक आपका फिगर ए में जो आपको दिया गया है. राइट. Alternatively, take a cell holder and put a cell in the figure B. Connect the positive end of the cell to C and a wire to D. This is the conduction test. अब आपने क्या करना है कि आपने एक सेल होल्डर लेना है, फिर आपने सेल को रखना है जैसे कि आपको फिगर बी में दिखाया गया है. राइट. फिर कनेक्ट करना है आपने पॉजिटिव एंड जो है सेल का सी के साथ एंड वायर को डी के साथ. तो ये आपका कंडक्शन टेस्टर है. कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज अ की, कॉइन, वुड, कॉक, ग्लास, rubber band, safety pin, plastic scale, pencil lead, candle, thermocol piece, an aluminium foil, mica, a sheet of paper, swing needle, pin, etc. अब आपको different जो है objects को collect करना है जो आपको इसमें mentioned है. Then take each object in turn and touch A to the one end of the object and B to the other end. If the bulb lights up, the object is a conductor. If however the bulb does not light up, फिगर बी द ऑब्जेक्ट एफ इज एन इंसुलेटर. तो देखिए आपने जो मटेरियल्स लिए हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने लिखने आपने हर ऑब्जेक्ट को लेना है और उसके बाद टच करना है ए को आप जो ऑब्जेक्ट है उसके एक एंड से एंड बी को दूसरे एंड से. अगर बल्ब लाइट अप होता है तो मतलब वो कंडक्टर है और अगर बल्ब लाइट अप नहीं होगा मतलब वो इंसुलेटर है. बेस्ड ऑन द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट वायर, की, मर्क्यूरी, iron, nail, etc. are the conductors of electricity. Matchstick, eraser, plastic scale, etc. are the insulators. So देखिए अब ये जितनी आपके जो मटेरियल्स हैं ये कंडक्टर्स हैं और बाकी आपके जो हैं ये आपके इंसुलेटर्स हैं. The human body is a very good conductor of electricity. Remember that human body भी जो है आपकी बहुत अच्छी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की. Note, electrical appliances should not be handled with bare hands. कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बेयर हैंड से आपको हैंडल नहीं करना चाहिए. इम्प्योर वाटर इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर्स आर मोस्टली metals and insulators are non-metals. Both conductors and insulators are important in using electric devices. Switches, sockets, electric plugs, etc. contain conductors. Insulators are used for covering electric wires, plugs, tops and all parts of electric appliances. देखिए आपके जो electric appliances होते हैं जैसे आपके स्विच, सॉकेट, इलेक्ट्रिक इनमें आपका कंडक्टर्स होता है और इंसुलेटर्स का यूज़ किया जाता है इनको कवर करने के लिए. जैसे आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स है या प्लग का टॉप है इन सभी को कवर करने के लिए इंसुलेटर्स का यूज़ किया जाता है. Points to remember. Electricity is one of our most widely used forms of energy. An electric cell has two terminals, a positive terminal and a negative terminal. A battery is a series of two or more cells. Button cells are used in watches, calculators, video games, etc. A solar cell produces electricity when sunlight falls on it. The tiny wire inside a bulb is called filament. A fused bulb is a bulb in which the filament is broken. The direction of electric current is always from positive terminal to negative terminal.
चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.